آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر سپریم کورٹ میں سماعت شروع، اگلی سماعت تک نئے مقدمات پر کارروائی نہ کرنے کی ہدایت۔ ایک ملک ایک چناؤ، کابینہ نے دی مرکزی فیصلے کو منظوری۔ کسان کو ہتھکڑیاں لگا کر کیا گیا ہاسپٹل منتقل، چیف منسٹر کا سخت رد عمل، اپوزیشن نے کی حکومت پر تنقید۔ بھاوچ کا ننند پر قاتلانہ حملے کے لیے برقعے کے استعمال کا انکشاف۔ اور ریاست تلنگانہ میں سردی کی شدید لہر، عادل آباد میں اقل ترین درجہ حرارت ریکارڈ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیل کی جانب سے شام پر حملے جاری ہیں، جس میں شامی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام میں فضائی کارروائی تیز کرتے ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر 480 حملے کیے۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے زیر قصبہ گولان کی پہاڑیوں کے مشرق میں ایک بفر زون پر فوج بھیج دی، جس نے 70 سے 80% شام کے اسٹریٹجک فوجی اثاثوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی محکمہ دفاع کے ڈپٹی پریس سیکریٹری سبرینا سنگھ نے کہا ہے کہ وسطی شام میں دہشت گرد گروپ اسلامک اسٹیٹ کے ٹھکانوں پر امریکی فضائی حملوں میں کئی دہشت گرد مارے گئے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اتوار کو کہا تھا کہ اس کی فورسز نے وسطی شام میں IS کے کیمپوں اور دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہوئے کئی فضائی حملے کیے ہیں، تاکہ دہشت گرد گروہ ملک میں موجودہ عدم استحکام سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ محترمہ سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہمارا ابتدائی اندازہ یہ ہے کہ وہ کامیاب رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سے دہشت گردوں IS کے دہشت گردوں کو صحرا میں مار ڈالا ہے۔ بلوچستان میں رونما سڑک حادثے میں 5 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق افسوسناک حادثے میں گزشتہ روز بلوچستان کے مقام بندر پر پیش آئے اس حادثے میں جہاں 2 گاڑیوں کے درمیان تصادم ہوا، ایک بچی سمیت 5 خواتین جاں بحق ہو گئی۔ اہل خانہ نے بتایا کہ جاں بحق خواتین کوئٹہ کی ہزارہ کالونی کی رہائشی تھیں۔ 5 خواتین کوئٹہ سے بہن کی عیادت کے لیے کراچی جا رہی تھیں، جو سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئیں۔ سپریم کورٹ میں جمعرات کو عبادت گاہ قانون پلیسز آف ورشپ ایکٹ پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے کہا کہ عدالت اس معاملے کی سماعت کرے گی، لیکن اگلی سماعت تک نئے مقدمات پر کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ عدالت نے واضح کیا کہ نئے مقدمات دائر ہو سکتے ہیں، لیکن عدالت ان پر کوئی سماعت یا کارروائی نہیں کرے گی۔ بری اسنا مرکزی حکومت کو ہدایت دی گئی کہ 4 ہفتوں کے اندر عدالت میں تمام زیر التوا درخواستوں پر اپنا جواب داخل کرے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کتنے مقدمات ابھی زیر التوا ہیں، جن میں متھرا اور گیان واپی کے مقدمات بھی شامل ہیں۔ سماعت کے دوران چند وکلاء نے مختلف عدالتوں کی جانب سے دیے گئے سروے کے احکامات پر اعتراض کیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایک وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس وقت 10 مذہبی مقامات سے متعلق 18 مقدمات مختلف عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ مرکزی حکومت نے بیک وقت انتخابات کے انعقاد کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں اس منصوبے کو منظوری دے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس منصوبے کے تحت موجودہ پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس میں اس قانون کا مسودہ پیش کیا جائے گا۔ اسی کے پیش نظر اہم بلز پر غور و فکر کے لیے 13 اور 14 تاریخ کو پارلیمنٹ میں تمام پارٹیوں کے ارکان کو حاضر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں بیک وقت انتخابات کے لیے حکومت نے اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وسیع مشاورت کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے ممکنہ طور پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے جمعرات کو اعلان کیا کہ دہلی کابینہ نے 18 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے مالی امداد کی تجویز کو منظوری دے دی۔ دہلی کے سابق چیف منسٹر نے یہ بھی اعلان کیا کہ 1000 روپے کی امداد جو اصل میں مارچ میں اعلان کی گئی تھی، اس کو بڑھا کر 2100 روپے کر دیا جائے گا اگر عام آدمی پارٹی آئندہ اسمبلی انتخابات میں اقتدار میں واپس آتی ہے۔ اعلان کرتے ہوئے کیجریوال نے نوٹ کیا کہ پیسہ بینک کھاتوں میں جمع نہیں کیا جائے گا کیونکہ انتخابات کا جلد اعلان ہونے کا امکان ہے، لیکن کہا کہ اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن کل سے شروع ہوگا۔ تو آج میں اعلان کر رہا ہوں، کل سے رجسٹریشن چالو ہوگا
और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। मैं दिल्ली की सभी माँ बहनों को कहना चाहता हूँ, अगले 2-3 दिन के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे। कार्ड को संभाल के रखना, और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे। और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। जैसे मैंने 1000 रुपए लागू कर दिए, ऐसे मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। जैसे मैंने बिजली फ्री कर दी, ऐसे ही मैं 2100 रुपए लागू कर दूंगा। कोई पूछे ना केजरीवाल का पास पैसा कहां से आएगा, कह देना हमारा केजरीवाल जादूगर है, छड़ी घुमाएगा और पैसे ले आएगा। सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को इबादतगाह कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत इस मामले की समाअत करेगी, लेकिन अगली समाअत तक नए मुकदमात पर कोई कार्रवाई न की जाए। इस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान वारिस पठान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कुछ अरसे से मुल्क में एक रुझान देखा जा रहा है कि लोग ख्वाब देख रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। सर्वे का मुतालबा करने के लिए अदालत में अर्जी दाखिल कर रहे हैं। निचली अदालतें इसकी बुनियाद पर सर्वे का हुक्म जारी कर रहे हैं। देखिए, कुछ वक्त से देश में एक ट्रेंड चला आ रहा था, खासतौर से यूपी में अन्य विभाग जगहों के ऊपर, कि जिसको भी कुछ समझ में आ रहा था, किसी को ख्वाब आ रहा है, किसी को ख्याल आ रहा है कि उस मस्जिद के नीचे कुछ है, तो बस उठ के चले जाते थे लोअर कोर्ट के अंदर, एक याचिका डालते थे कि हमको इस मस्जिद के अंदर सर्वे करना है, हमको लगता है कि ये मस्जिद है, मंदिर तोड़ के बनाया गया है, ये मस्जिद के नीचे कुछ है। ये ट्रेंड चला आ रहा था, जिसके जो समझ में आ रहा है करते जा रहा था। लोअर कोर्ट याचिका को लेती थी, सर्वे का आदेश दे देती थी, और देश के अंदर अराजकता का माहौल आप तमाम देख रहे थे किस तरह से फैल रहा था। अब हम हमेशा से ये कह रहे थे, और आज भी हमारा ये कहना है कि बाबरी एरा के वक्त प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक 1991 आया था। उसका मेन इंटेंशन, उसकी नीयत लाने की एक मुद्दा क्या था? सिंपल यही था कि जितनी भी चीज 15 अगस्त 1947 के पहला जो मॉन्यूमेंट्स है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ताकि देश में स्थिरता रहे। हमारे देश को बाबरी का एरा भूल जाए, आगे इस तरह का हिंदू मुसलमान डिवाइड न हो, हमारे देश की जो सेकुलरिज्म प्लुरलिज्म है वो बना रहे, हमारे देश के अंदर कायदा कानून बना रहे, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब जो है वो बची रहे। ये तमाम चीज को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामेंट में, लोअर हाउस में, अपर हाउस में इसका आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट के बाद में कानून है, आज वो कानून एग्जिस्टेंस में है। अब वो कानून के चलते कोई भी याचिका करता जा रहा है, सीधा एप्लीकेशन डाल के सर्वे कराने की बात कर रहा है, तो हम तो यही बोलेंगे संविधान को मानो। अब संविधान को भी नहीं मानेंगे, उसकी धज्जियां उड़ाएंगे तो कैसा चलेगा? और इस तरह के आदेश दे देना एक गलत था। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी कोर्ट नया केस इस तरह का एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो सर्वे के आदेश दिए गए हैं वहां पर भी उन्होंने रोक लगाई है, और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को शायद 4 हफ्ते का कुछ समय दिया है अपनी एफिडेविट फाइल करने का, और सारी चीजों के ऊपर स्टे एक लगा है फिलहाल। अब हमको यकीन है कि जब दोनों पक्ष का आर्गुमेंट सुनेगा तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की मान्यता को मानते हुए फैसला करेगा, वरना हमारा देश की दिशा में आ रहा है। कोई भी आ रहा है, सोच लीजिए अजमेर शरीफ की दरगाह, ख्वाजा अजमेरी की दरगाह 800 साल पुरानी, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके हमारे देश के प्रेजेंट वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी तक सब उस पर आस्था रखते हैं, सब वहां पर चादर चढ़ाते थे। अब वहां पर कोई याचिका करता जाता है, और कौन याचिका करता है? जिसके खुद के ऊपर सैकड़ों केस है। प्रशांत भूषण को मारने का एफआईआर है, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट असद उमैसी साहब के घर के बाहर जो धमाल किया था, तोड़फाड़ किया था, उसका एफआईआर है। अब ऐसा आदमी जाता है कोर्ट में, बोलता है मुझे सर्वे कराना। तो किस दिशा में आप देश को लेके जाना चाहते हो? तो हम यही चाहते थे ना कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हर इंसान को अपना प्रैक्टिस करने का रिलीजन अधिकार है, वो सारी चीजों का सम्मान हो। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को सबको मानना चाहिए, ये हमारा बोलना था। और कोर्ट ने आज जो आदेश पास किया है, आगे देखते मैटर सब जुडिशियल, ज्यादा उस पर कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन हमको यकीन है कि कोर्ट जो भी फैसला करेगी सोच समझ के, देश की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, देश के माहौल को मद्देनजर रखते हुए हमको यकीन है फैसला इंशाल्लाह आएगा।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लिखा हुआ गुब्बारा जम्मू कश्मीर पुलिस ने कठुआ जिले के लहदी इलाके में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद के करीब बरामद किया। ये वाकया चारशंबे की दोपहर को पेश आया जब PIA का निशानजदा और हवाई जहाज की शक्ल का गुब्बारा मैदान में एक अलग थलग जगह पर पड़ा पाया गया। इतला मिलने पर जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को जब्त कर लिया गया। मरकजी काबीना की जानिब से वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी देने पर पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का कहना है कि महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं करवाए गए। झारखंड में 80 सीटें और इंतखाबात 2 मरहलों में हुए थे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुख्तलिफ तरीके से कराए गए। महाराष्ट्र और झारखंड में क्यों नहीं करवाए इन्होंने एक साथ? झारखंड में 80 सीटें हैं, 2 फेज में करवाई। पंजाब में बाई इलेक्शन किसी और तरीके को करवाई, यूपी में किसी और तरीके को करवाई। पहले यहां से तो एग्जाम्पल दे देते कि वन नेशन वन इलेक्शन, 2 स्टेट वन इलेक्शन तो करवा नहीं सकते। ये इसका मतलब कोई ना कोई और इनके मन में होगा। फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मैं ये वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं करते? वन नेशन एक देश एक इलाज क्यों नहीं करते? वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक ही मुद्दे पे चले जाएंगे। लोकल पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, उनके मुद्दे तो बीच में ही खत्म हो जाएंगे। तो मतलब ये चाहते हैं बस एक ही दिन वोट डालो और चलो 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 हो गया, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीतो, हाँ वालों की जीतो, ये वही वाला काम है। उत्तर प्रदेश झांसी के सुपर कॉलोनी में वाक़ मदरसे के एक उस्ताद मुफ्ती खालिद नदवी के घर पर NIA ने धावा किया। टीम ने 10 घंटे तक दस्तावेज की जांच की और मालूमात इकट्ठी की। जब पुलिस ने नदवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मुकामी बाशिंदों ने घेर लिया और उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। मुफ्ती खालिद नदवी का कहना है कि तकरीबन 2 से 3 बजे के करीब NIA की टीम दिल्ली से इनके घर पर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। नामालूम अफराद के खौफ से दरवाजा नहीं खोला गया। अहले क़रा ने मदद के लिए अपने चाचा से रब्ता किया। बाद टीम ने अंदर घुसकर घर के हर कोने की तलाशी ली। रात में 2:30 बजे करीब 3 बजे करीब ये लोग आए। इन लोगों ने कुंडी खटखटाई। NIA वाले आए दिल्ली से और इन्होंने रात में कुंडी बजाई। हमने नहीं खोली, डर की वजह से, पता नहीं कोने में से खोल देते। अकेले थे तो डर लगा कौन है, तो हमने अपने चाचा को फ़ोन किया, वो आए पीछे से, फिर उन्होंने खुलवाई गुंडी तो हमने हल्का फौरन खोल दी। और हमें इसलिए इस वजह से नहीं खोली, डर लग रहा था, पता नहीं अकेले रात में 3 बजे कौन आगे कुंडी बजा रहा है, इस वजह से हमने कुंडी नहीं खोली। 10-15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद कुंडी खुल गई और हमारे चाचा आ गए। फिर उसके बाद सारे घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई और पूरे कवर्ड देखे, मचान देखा और किचन में देखा, किचन के पीछे जो बनी थी गिरली वो देखी गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने और किताबें देखते रहे, किताबें देखते रहे। बहुत सारी किताबें देखी। ये किसकी लिखी हुई है, कहाँ से आई है, किसने बनाई है, कौन है लिखने वाला, आपका इनसे कौन क्या कॉन्टेक्ट है। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए अक्टूबर में, उसके बारे में जांच की। फिर उसके बाद ऊपर वाले पोर्शन में गए, ऊपर वाले पोर्शन में फिर पूरी जांच की और पूरी बात पूछी गई। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए। तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं, पोस्टर में सब लोग कांटेक्ट करते हैं, सब लोग कि भाई हमें भी पढ़ना है और बाकायदा उन्हें मैसेज भी देखे, एडमिशन के फॉर्म के मैसेज भी डला हुआ है कि भाई देखो ये एडमिशन हो रहा है। तो इस वजह से उसके बाद फिर कहने लगे कि मौलाना इलियास गुम्मन साहब का मसला आया। मौलाना इलियास गुम्मन साहब कौन है, ये कहाँ से हुआ। तो इस सिलसिले में जांच चल रही है और जो कुछ है उन्होंने बना के दे दिया है, हमारे पास मौजूद है।
बर्तानिया में पेश है एक खौफनाक सड़क हादसे में आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 32 साल तालिब इल्म हलाक हो गया, जबकि एपी के दीगर 4 अफराद बशमूल ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मंगल की सुबह लेस्टर शायर में 5:45 पर कब्बर्त इलाके में उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और एक कार सड़क से उतरकर गड्ढे में गिर गई। 3 अफराद को शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल से रुजू किया गया। इस हादसे में हलाक चिरंजीवी का ताल्लुक अंगुल से है, जिसने हाल ही में स्वानसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की तकमील की थी। इस हादसे में मौके पर ही हलाक हो गया। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के लिए फेशियल रिकॉग्निशन से अटेंडेंस का निजाम आज से नाफिज कर दिया गया। इस नए निजाम के तहत सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले तमाम महकमों के अफसरान और अमले की हाजिरी अब चेहरे की शिनाख्त के जरिए दर्ज की जाएगी। ये निजाम मुस्तकिल और आउटसोर्सिंग दोनों किस्म के मुलाजिमीन पर लागू होगा। इसके लिए सेक्रेटेरिएट में 60 से ज्यादा मशीनें नस्ब की गई हैं। इस निजाम के आगाज के साथ ही मुलाजिमीन को सुबह 10 बजे तक दफ्तर पहुंचना जरूरी करार दिया गया है। हुकूमत ने इकदाम वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने और दफ्तर की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी जेल से किसान हीरैया नायक को हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाने के दौरान हथकड़ियां पहनाने के वाक़े पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि एक बीमार किसान को हॉस्पिटल ले जाते वक्त हथकड़ियां पहनाने की जरूरत क्यों पेश आई। रेवंत रेड्डी ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दिया और आला हुक्काम से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि अवामी हुकूमत ऐसे गैर इंसानी हरकतों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को किसान हीरैया नायक को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत दी। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने किसान हीरैया नायक को सीने में तकलीफ के दौरान हथकड़ियां पहनाकर जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करने के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि एक बीमार शख्स को एम्बुलेंस में ले जाने के बजाय हथकड़ियां पहनाकर हॉस्पिटल ले जाना कहां तक मुनासिब है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि जेर हिरासत किसान को जालिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जब किसानों ने जुल्म की शिकायत मजिस्ट्रेट के सामने की तो उनके घर वालों को भी धमकियां दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ इस सलूक की वाहिद वजह यह है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के खिलाफ आवाज उठाई थी। గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్తే బేడీలు వేసి పట్టుకోమో ఇంత అన్యాయంగా ఇంత అమానవీయంగా ఇంత సంస్కారహీనంగా ఇంత చండాలమైన ప్రవర్తన ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. స్ట్రెచర్ మీద తీసుకురావాల్సిన మనిషిని అంబులెన్స్ లో తీసుకురావాల్సిన మనిషిని ఇయాల ఒక పోలీస్ బండ్లో తీసుకురావడమే కాకుండా ఇంకా నికృష్టంగా ఈ రకమైన ప్రవర్తన ఏదైతే వీళ్ళు చేస్తా ఉన్నారో ఇది క్షమార్హం కానే కాదు. నేను గౌరవ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిని కోరుతా ఉన్నా, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకుడు పార్లమెంట్లో ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీని కోరుతా ఉన్నా, డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. రాహుల్ గాంధీ గారు మీకు కనీసంగా మానవత్వం అనేది ఉంటే, మీకు కనీసం గుండె ఉంటే, హృదయం అనేది ఉంటే వెంటనే ప్రభుత్వానికి ఆదేశం ఇవ్వండి, మీ ముఖ్యమంత్రిని మందలించండి. ఆయనేమో జైపూర్ बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के हवाले से हुकूमत की पेश करदा तजवीज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2017 में ही उन्होंने एक ही वक्त में असम्बली और लोकसभा इंतखाबात करवाने की तजवीज पेश की थी, जिस पर उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुल जमाती इजलास भी मुनक्किद किया था। केटीआर ने कहा कि इस इजलास में इन्होंने इस तजवीज की हिमायत की थी। केटीआर ने कहा कि 7 साल बाद ये तजवीज दोबारा सामने आई है और मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि मरकजी काबीना ने इसको मंजूरी दे दी है। ताहम उन्होंने कहा कि इस बिल की तफसीलात के बारे में अभी वजाहत नहीं की गई है और ये देखना बाकी है कि हुकूमत इस बिल को किस शक्ल में पार्लियामेंट में पेश करेगी।
Well, back in 2017, when this proposal was mooted, One Nation, One Election, there was an all-party meeting which had been called by the Prime Minister, which I also have attended on behalf of my party. We had expressed our support back then. This was 2017. But now 7 years later, when One Nation, One Election bill has been cleared by the cabinet, I've just learned it from the media. I'm not sure in what form and shape it is. You know, the devil lies in the detail. So therefore, we'll have to see the details. We'll have to see what the government is thinking in terms of constitutional amendment, in terms of gathering support. Will they call for an all-party meeting? Will they take all of us into confidence? Will they ensure that the regional parties, their ambitions, their aspirations are also taken into account? So we'll really have to see the details of the bill before we can actually commit to anything. We have to discuss within our party. We'll have to see how the government proposes to move forward with this bill. And then I think as a party we can sit and take stock and then comment. तेलंगाना के निर्मल जिले के मुधोल मंडल में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक खातून ने अपनी ननंद पर चाकू से हमला करते हुए उसे शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी जराये के मुताबिक ये वाकया मुधोल मंडल के साई माधव नगर इलाके में पेश आया। बताया गया है कि एसबीआई के मुलाजिम हनुमंत राव की बीवी अश्विनी ने चाहशंबे की दोपहर बुर्का पहनकर अपनी ननंद के घर में दाखिल हुई और उस पर चाकू से हमला कर दिया। वाकये के फौरी बाद मुकामी लोगों ने खातून को शदीद जख्मी हालत में फौरी तौर पर इलाज के लिए भैंसे के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे एक खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हमलावर अश्विनी को गिरफ्तार कर लिया और मुकामी वाकये का मुआयना किया। मुधोल के सर्कल इंस्पेक्टर मल्लेश ने कहा कि हमले की मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा रही हैं। लगाचल्ला से ताल्लुक रखने वाले किसान हीरैया नायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया। जुमेरात को हीरैया नायक को सीने में तकलीफ होने पर जेल हुक्काम ने उन्हें हथकड़ियों समेत संगारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया गया। हथकड़ी पहनाकर हीरैया नायक को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराजात उठाए और पुलिस की इस हरकत को गैर अखलाकी करार दिया। इस दौरान संगारेड्डी रुकने असेंबली चिंता प्रभाकर हॉस्पिटल पहुंचे और हीरैया नायक से मुलाकात की। हैदराबाद में एक कार ने 18 माह की लड़की को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो हलाक हो गई। ये हादसा जुमेरात को शहर के जवाहर नगर इलाके में पेश आया। ये लड़की घर के सामने खेल रही थी कि कार ने उसे रौंद दिया। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लड़की के अरकान खानदान उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा के रुकने असेंबली मोहम्मद मुबीन ने जुमेरात को शमशीरगंज के श्री चैतन्य हाई स्कूल का दौरा किया और कैंपस में मुस्लिम तुलबा पर हमले के बारे में दरियाफ्त किया। रुकने असेंबली ने स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी कि तुलबा की हिफाजत को यकीनी बनाएं और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकें जहां तमाम बिरादरियों के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए इकट्ठे हों। स्कूल इंतजामिया ने मजीद क्लोज सर्किट कैमरों की तनसीब और मुनासिब सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती समेत सिक्योरिटी मैकेनिज्म को बेहतर बनाने की यकीन दहानी करवाई। गाड़ी में बच्चा रहता, सुबह घर से निकलता तो उन्हें 4 बजे 5 बजे तक आपके स्कूल में ही रहता हो, तो घर में कम स्कूल में ज्यादा रहते, तो वो तो होना ही चाहिए कैसा भी। कौन सी क्लास के बच्चे? वो 7th और 8th क्लास के बच्चे। 7th और 8th। अगर ये लोग चाहते तो सिर्फ 7th क्लास के बच्चे, मतलब जो बच्चों की लड़ाई हुई उन बच्चों को ऑलरेडी बोला गया पेरेंट्स को लेकर आने के लिए। अगर वो पेरेंट्स सिर्फ वहीं तक आ जाते तो शायद ये मामला यहीं पे होता। हम लोग काउंसिल करते, पेरेंट्स को बताते, सब लोग आपस में बात करते और सॉल्व हो सकता था। लेकिन ये जो इश्यू इन्होंने मतलब दूसरे वे में ले गए, मतलब जिस तरीके से सब लोग आ गए, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे इतने लोग आके ऐसे, मतलब एक्सपेक्टेशन हम लोग की इतनी ज़्यादा रहेगी कल। लेकिन कल मीटिंग हुआ जिसमें मतलब सबने जो है सॉल्व किया। मतलब हमारे डीसीपी मैडम ये लोग भी आए थे, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं ये सब नहीं होना है, तो मामला तो ठीक है और आज रन करने को कहा गया। हैदराबाद के एक वकील ने फिल्म अदाकार मोहन बाबू और उनके 2 बेटों मंचू विष्णु और मंचू मनोज के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और टीवी सहाफी के साथ बदसलूकी और हमले के सिलसिले में तीनों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया।
शिकायत कुरिंदा अरुण कुमार जो कि हाई कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये तीनों सिर्फ एक फैमिली ड्रामा कर रहे हैं। एक अजीबोगरीब वाकये में उप्पल में एक मुश्तबा चोर के घर से जूतों के कई जोड़े बरामद हुए। उप्पल की एक कॉलोनी के रिहायशी देखकर हैरान रह गए कि इनके घरों और मंदिरों से जूते बाकायदगी से गायब हो रहे हैं। जुमेरात को उन्होंने शक की बुनियाद पर कॉलोनी में वाक़ इस चोर के घर को चेक किया, जिसके बाद वे देखकर हैरत ज़दा हो गए कि इसके घर में मुख्तलिफ साइजेस के जूतों के जोड़े मौजूद हैं। लोगों ने बताया कि एक शंकर नामी शख्स मुबैना तौर पर रात के वक्त घरों में घुसकर जूते और चप्पल चोरी कर रहा था। चोर के घर की तलाशी लेने पर सैकड़ों चोरीशुदा जूते बरामद हुए, जिस पर वो हैरान रह गए। शहरियों ने फौरी तौर पर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया है कि चोर की बीवी चंद रोज कबल नशे की हालत में पुलिस ओहदेदारों को गालियां देते हुए पकड़ी गई थी। వాసవనగర్లో దొంగ లోపల ఉండు మీకు రండి ఒకసారి చూపిస్తాను నా పేరు శంకర్ యాదవ్ భరత్ నగర్ శ్రీనగర్ కానీ సత్యనగర్ ఏ పని చేసుకున్నా బతుకోవచ్చు చెప్పులు దొంగతనం చేసి దొంగతనం కాకూడదు ఇవి నా కొడుకు అమ్మ ఇవి నా కొడుకు ఇవి నా కొడుకు ఈ అన్నయ్య నా ఇంకో జతలు లేదు ఇవాళ భార్య రాత్రి అట్లా దొంగతనం చేయాలంటుగా నా దగ్గర సీసీ కెమెరా సీసీ మీ అమ్మ కూడా ఈ దొంగతనం ఆ దొంగతనం చూసినా కానీ నేను చెప్పుల దొంగతనం చూడలేదు ఈ చెప్పుల దొంగతనం చేసులేదు అనేది తీయాబాకుడిది నైట్ ఎక్కడ తెచ్చినా నైట్ తెచ్చినా ఎక్కడ పెట్టినా పార్టీ చెప్పు అందులో లేవు ఇంకా तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर जारी है। कई मकामात पर सर्दी के साथ साथ सुबह के औकात में कोहर भी देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है और वो गाड़ियों के हेडलाइट्स खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। जिले आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत 60 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीमपुर मंडल के अर्लीटी गांव और जैनात मंडल मुस्तकर में अकल तरीन दर्ज हरारत 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बोध, बाजार, हथनूर, आदिलाबाद अर्बन मंडलों और जिले के पहाड़ी इलाकों में अकल तरीन दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रहा। जिले के कबायली इलाकों में अकल तरीन दर्ज हरारत दर्ज होने की वजह से सुबह 8 बजे तक घरों से बाहर निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। सर्दी की शिद्दत में अचानक इजाफा होने पर डॉक्टर्स ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू, अगली समाअत तक नए मुकदमात पर कार्रवाई न करने की हिदायत। एक मुल्क एक चुनाव, काबीना ने दी मरकजी फैसले को मंजूरी। किसान को हथकड़ियां लगाकर किया गया हॉस्पिटल मुंतकिल, चीफ मिनिस्टर का सख्त रद्द-ए-अमल, अपोजिशन ने की हुकूमत पर तनकीद। भावच का ननन पर कातिलाना हमले के लिए बुरके के इस्तेमाल का इंकशाफ। और रियासत तेलंगाना में सर्दी की शदीद लहर, आदिलाबाद में अकल तरीन दर्ज हरारत रिकॉर्ड। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यही इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।